variation in sewage flow, and the flow quantity estimation. Let's see. These are the content of the presentation. First, we will see the sources of wastewater, then the composition of sewage, variation in the sewage flow, then the flow quantity estimation. That is for we have to find the quantity of sewage and also the drainage discharge. Then first see the sources of the wastewater. There are n number of sources, but I have taken only three. That is from agricultural source, then the domestic source, and the industrial source. In the agricultural source, the sediment runoff. Sediments runoff means अगर रेनफॉल हुआ या फिर ज़्यादा वाटर जो है क्रॉप्स को प्रोवाइड किया तो क्या होगा कि वो सब उसके साथ वाटर एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर जो वो रन ऑफ हो जाएगा उसके साथ वाटर रन ऑफ होगा तो उसके साथ में जो सेडिमेंट्स है क्ले पार्टिकल है सैंड पार्टिकल है सॉइल पार्टिकल्स है वो सब उसके साथ चल जाएंगे तो वो भी जाके अल्टीमेटली सीवेज में मिक्स होंगे देन न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ उसके साथ में वो रन ऑफ के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो भी जाएंगे और दूसरे जैसे कि या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे किया होगा इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया होगा वो भी क्या होंगे रन ऑफ के थ्रू चले जाएंगे देन वेजिटेबल वेस्ट भी आएगा रन ऑफ के थ्रू फायर वेस्ट अगर हार्वेस्टिंग के बाद अगर वेस्ट वाटर सॉरी हार्वेस्टिंग का जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट है उसको जला दिया जलाने के बाद वहाँ पर वो वेस्ट वहीं पड़ा है तो रन ऑफ के थ्रू क्या हो जाएगा वो भी उसमें मिक्स होके अल्टीमेटली सीवेज में मिलेगा देन पोल्ट्री में से जो वेस्ट आएंगी वो भी आगे जाके सीवेज में मिलेंगी देन डेयरी फार्मिंग वेस्ट ये भी एक टाइप की वेस्ट है देन डोमेस्टिक वेस्ट में से क्या कहेंगे तो सबको फैमिलियर हो ये सभी चीज़ें लिए जैसे कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स आ गया बराबर है क्लोथ्स में जो कुछ भी वेस्ट वाटर जनरेट होगा वो देन शावर बाथिंग करते समय वेस्ट वाटर जनरेट होगा देन किचन में से जैसे वॉशिंग यूटेंसिल्स वॉशिंग फ्रूट्स वॉशिंग वेजिटेबल्स इन सभी से जो कुछ भी वेस्ट जनरेट होगा वो भी मिलेगा देन टॉयलेट डब्ल्यूसी का वेस्ट देन सेप्टिक टैंक में डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट जनरेट होगा वेस्ट वाटर जनरेट होगा वो देन स्कूल एंड हॉस्पिटल में से भी जो वेस्ट है वो भी डोमेस्टिक वेस्ट में कंसिडर किया गया है देन ऑफिसेस में भी वही एक्टिविटी होने वाली है अदर देन जैसे कि नहाना नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ then industrial में से these are the various types of industry here they require huge quantity of water for the process out of this industry the textile industry required most wastewater sorry most water for the process that's why textile industry generate maximum wastewater and the sugar industry also required water and it produces the wastewater. Fertilizer industry, then dairy industry, then paper and pulp industry, textile industry, and beverage industry. All these industries require huge quantity of water and they produce huge quantity of wastewater. Then composition of sewage. Uh, composition of sewage or the composition of wastewater is very wide. Okay, this is here I will tell you the partial list of the sewage. First is the water. Sewage contains more than 95% of water. Okay? Pathogenic and non-pathogenic bacteria. Pathogenic bacteria which may cause harmful effect on us, or non-pathogenic bacteria which doesn't cause harmful effect. Then organic particles such as feces, food, vomit, paper fibers, plant materials, etc. Then soluble organic material that are soluble in the wastewater such as urea, fruit sugar, soluble proteins, drugs. Then inorganic particles such as sand, grit, metal particles, ceramic. These all are the inorganic particles. The basic difference between organic and inorganic particles are organic matters are some part of organic matter is degradable and inorganic matter uh, inorganic matter is not biodegradable. Okay.
और the organic matter is comprises of CH and OS, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. Then next is our soluble inorganic matter. The inorganic matter which is soluble in wastewater such as ammonia, then cyanide, hydrogen sulfide, thiocyanate, thiosulfate, sea salt. These all are the chemicals which are dissolved in the sewage. Then animals such as then insects, arthropods, small fish. Then macrosolid. Macrosolid means they have a larger size as compared to all the above impurities or all the above products. Okay. Such as macrosolids includes nappies or diapers, needles, children's toys, dead, dead animal or plants. Then gases. Uh, as we know, the continuous decomposition of the sewage is going on during its flow. So the gases produced are hydrogen sulfide gas, carbon dioxide, and methane. Sometimes it may dissolve in the sewage also. Then toxins such as pesticides, poisons, and herbicides. These all are the toxic chemicals. Then pharmaceuticals, the waste which comes from the medicine or drugs industry that comes into the pharmaceutical. This is the composition of sewage. Then the next topic is the variation in the sewage flow. वेरिएशन इन द सीवेज फ्लो यानी सीवेज का जो वेरिएशन है आवरली वेरिएशन कैसा है यानी पूरे दिन में सीवेज वेरिएशन कैसा रहने वाला है अब सीवेज वेरिएशन जो कुछ भी है वो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा क्योंकि वाटर कंजम्पशन अपना कांस्टेंट नहीं है पूरे दिन में वेरी करता है सुबह कुछ एक्टिविटी होती है तो फिर में एक्टिविटी नहीं हो या कम एक्टिविटी हो शाम में थोड़ी और एक्टिविटी हो रात में फिर से एक्टिविटी इसलिए जो कुछ भी सीवेज का जो वेरिएशन हो सीवेज का वेरिएशन कांस्टेंट नहीं रहने वाला है सीवेज का वेरिएशन जो है वो चेंज होने वाला है और जो कुछ वेरिएशन है वो वेरिएशन अपन इधर देखेंगे देन सीवेज फ्लो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर सप्लाई ये वाटर सप्लाई के हिसाब से कि वाटर कंज्यूम के हिसाब से जो सीवेज है वो कितना जनरेट होगा देखेंगे अब एक्स एक्सिस पे इधर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है आवर्स ऑफ द डे फ्रॉम 0 यानी रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे तक 12 0 2 4 6 8 10 12 noon 2 4 p.m 6 8 10 and again 12 okay here the dotted curve indicates the water supply or it may be called as water consumed okay then the continuous line or continuous curve indicates the sewage flow or the sewage okay and on y-axis there is a quantity of sewage or water. Here you can see that there is a difference between dotted line, difference between dotted curve and the continuous curve. Okay, that difference is और जैसे अपन ने फ्लो क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है तो जितना अपन वाटर यूज करेंगे उतना ही या फिर जितना वाटर अपने पास आया है सप्लाई किया है गवर्नमेंट ने या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने तो उतना ही वाटर अपन वेस्ट नहीं करते कुछ वाटर लॉस हो जाता है कुछ वाटर यूज हो जाता है इसीलिए इसमें जो है ये डिफरेंस है सपोज ये 100 लीटर का होगा मार्क सपोज तो ये 80 लीटर का है ठीक है यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेंगे ये इसमें और ये डिफरेंस ऑब्वियसली कम रहेंगे तो अब ये डॉटेड लाइन है अब पहले अपन वाटर सप्लाई की लाइन देखेंगे वाटर कंजम्पशन की लाइन कर्व देखेंगे तो सुबह रात के 12 बजे जो कि रात के समय में वाटर कंजम्पशन जो कुछ भी वो कम रहेगा धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि कोई 4 बजे उठता है कोई 6 बजे उठता है कोई 8 बजे उठता है ठीक है तो उस हिसाब से जो वेरिएशन दिखेगा तुम्हें सुबह के टाइम पे वेरिएशन दिखेगा और सुबह के टाइम पे जो वाटर सप्लाई है वो ज़्यादा वाटर यूज होने वाला है क्योंकि डे लाइफ में सॉरी मॉर्निंग टाइम में 6 to 10 के समय मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन एक्टिविटी होती है इसीलिए इधर हमारे को पीक दिख रहा है कि इधर पीक टोटल 8 बजे के आसपास क्या है इधर पीक है वाटर कंजम्पशन का पीक इधर है या वाटर सप्लाई का पीक बोल सकते हो ठीक है फिर बाद में क्या होगा फिर से क्या होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा कम होने के बाद फिर से वो 2 बजे के आसपास में कम हो गया ठीक है फिर उसके बाद में फिर से बढ़ेगा
जो कुछ भी खाना वगैरह खाया होगा तो फिर उसके बाद में वॉशिंग यूटेंसिल्स वगैरह के लिए या फिर शाम के टाइम पे फिर से फ्रेश होने के लिए जो वाटर यूज होंगे या फिर जो जॉब या वो ऑफिस आने के बाद फ्रेश होंगे, तो इसलिए क्या वो इधर वाटर कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, ये पीक और ये पीक में हमेशा डिफरेंस ही रहेगा। मॉर्निंग टाइम में अपने हमें ज़्यादा वाटर यूज होता है इसलिए इधर पीक बढ़ा रहेगा। इवनिंग टाइम में वाटर कम यूज होता है इसलिए इधर का जो पीक है वो छोटा रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा वाटर सप्लाई का कर्व बाद में। और सबसे कम समय जहाँ पे कर्व की जो डॉटेड कर्व दिख रहा है तुम्हारे को, सबसे कम वो नाइट टाइम में दिखे, क्योंकि नाइट टाइम में मोस्टली एक्टिविटीज नहीं होती इसलिए जो वाटर कंजम्पशन है वो भी बहुत कम रहेगा। और ये कभी अगर ग्राफ आपको निकालने को बोला गया टाइम वेरिएशन का ग्राफ और वाटर सप्लाई और वाटर कंजम्पशन और सीवेज सप्लाई, सॉरी सीवेज जनरेशन, तो ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब तुम अगर स्केल तुमने जीरो से स्टार्ट की, यानी 12 बजे से स्टार्ट किए, जीरो से स्टार्ट की और फिर से जीरो पे एंड किए, ये 12 और जीरो दोनों एक ही है। ये जो जीरो है और ये 12 है दोनों एक ही है। तो ये जब तुमने स्टार्ट किया तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होंगी, ये यहाँ से देखिए एक, और एक दूसरी लाइन पे क्या हो रहा है तुम्हारा वाटर सप्लाई की लाइन जो स्टार्ट हो रही है और उसी समय में यहीं पे खत्म हो रही थी। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो कर्व है ये निकालते समय ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर तुमने ये इधर दिखाया और ये थोड़ी सी डॉटेड लाइन इधर साइड में तुमने इधर दिखाया, तो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ही समय पे, यानी ये दिख रहा है तुम्हारे को जीरो, जीरो और 12 अलग अलग, लेकिन एक ही समय पे क्या हो जाएगा कि एक समय पे वाटर सप्लाई कम और एक समय पे वाटर सप्लाई ज्यादा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना। अब अपन दूसरी तरफ पढ़ते हैं, जैसे सीवरेज के लिए, सीवरेज सिस्टम में जो कुछ फ्लो होगा वो कैसा है, या फिर सीवेज जनरेशन का। ठीक है, अब इसमें वही जैसा सीवेज, जैसा वाटर सप्लाई का नेचर है उस टाइप में रहता है, ये फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके फॉलो करता है। जैसे आगे जाके फॉलो करता है यानी कि क्या, अब तुम्हें पीक वाटर सप्लाई का पीक तुम्हें कहाँ दिख रहा है, 8 बजे के समय दिख रहा है। ओके, वाटर सप्लाई का पीक तुम्हें 8 बजे दिख रहा है। अब वाटर जैसी सप्लाई हो उसी इंस्टेंट पे तो ऐसा नहीं होगा ना कि सीवेज जनरेट हो गया, बराबर है। कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद वो वाटर वेस्ट एज अ वेस्ट वाटर जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका जो पीक रहेगा उसका पीक थोड़े आगे दिखेंगे। तो ये भी एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जब कभी भी अगर तुम्हें कर्व ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो इधर जो दिख रहा है तुम्हें, इधर जो पीक दिख रहा है सीवेज का, जो सीवरेज सिस्टम में जो फ्लो है उसका जो पीक दिख रहा है तुम्हें वो 8:15 या 8:30 बजे के आसपास दिख रहा है, और वाटर सप्लाई का पीक दिख रहा है तुम्हें 8 बजे। ये डिफरेंस क्यों है ये अभी समझाइए। ये सेम आगे भी जाके फॉलो है, इधर देखो ये पीक आ रहा है, इधर पीक, इधर ये पॉइंट आ रहा है, तो कुछ भी पीक का डिफरेंस है वो थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है, इसीलिए कि वाटर जैसे ही कंज्यूम कर रहे हैं अपन, इंस्टेंटली वेस्ट वाटर जनरेट नहीं होता, उसको सीवरेज सिस्टम में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए जो गैप दिख रहा है तुम्हारे को पीक में वो थोड़ा सा गैप है। दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज फ्लो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर सप्लाई। Then the next is the variation in the sewage flow. Again, the maximum daily flow can be computed as the is equal to the twice the average daily flow. Average daily flow जो होगा उससे अपने को maximum daily flow कितना लेना पड़ेगा, twice लेना पड़ेगा. Then the maximum hourly flow is equal to the 1.5 times the maximum daily flow, and the maximum daily flow is twice the average daily flow. Therefore, maximum hourly flow is equal to 3 times the average daily flow. Okay. Then we always consider the maximum daily flow or maximum hourly flow, but minimum daily flow is also important. Okay. So why is it important? Because at low flow, the velocity will reduce considerably. Okay, which may cause silting, that is deposition. Hence, the slope at which the sewer is to be laid has to be decided in accordance with the requirement of minimum permissible velocity at the minimum flow. Mark this point. Minimum permissible velocity at minimum flow. Why? To avoid the deposition of sewage. सीवेज का डिपोजिशन अवॉइड करने के लिए अपने को मिनिमम फ्लो का भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिनिमम फ्लो के समय में उसकी सीवेज की वेलोसिटी इतनी ना हो, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इतनी ना हो, तो जो कुछ सीवेज है वो सीवर में ही डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए ये पॉइंट अपने हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, द मिनिमम डेली फ्लो इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स एवरेज डेली फ्लो।
then minimum hourly flow is equal to one half the minimum daily flow, half uh, sorry and minimum daily flow is equal to uh, sorry minimum hourly flow is equal to one half times the minimum daily flow, and it is also equal to half one third times the average daily. Okay. This one more important point is the sewer must be checked for minimum velocity. Okay, the sewer must be checked for minimum velocity at their minimum overly flow. For minimum overly flow, we have to check the minimum velocity at minimum overly flow, not for minimum daily. Okay, this is important point during the design of sewer while considering the minimum flow. Then flow quantity estimation. Sewage or sewage is, there are two types of flow: dry weather flow and the wet weather flow. Dry weather flow is also called as sewage discharge. Accurate uh, accurate estimation of the sewage is important for design of sewer, because if accurate estimation is not done, then what will happen, the sewer may either have proved to be inadequate to carry the sewage, or resulting in the overflow, or it may overflow. Uh, okay. Then theoretically, it is equal to the quantity of water supply. Theoretically, we can say that the quantity of sewage generated is equal to the quantity of water supply. But practically, it is not possible because there are some losses or some addition. So we have to consider the some addition as well as some subtractions. The Let's consider the addition part, addition factors. ड्यू टू सम प्राइवेट वेल्स और ट्यूबवेल्स, अब वाटर जो सप्लाई होता है कंज्यूमर तक, जो वाटर सप्लाई होके आता है, उसमें प्राइवेट वेल और ट्यूब वेल का कैलकुलेशन नहीं रहता। अगर अपने घर में, किसी के घर में बोरवेल है या प्राइवेट वेल है, तो क्या वो वाटर तो यूज करेंगी और वो वेस्ट वाटर जनरेट करेंगे, ठीक है। और लेकिन ये वाटर सप्लाई में कंसिडर हुआ है कि ये दोनों वाटर नहीं यूज है, इसलिए ये जो पॉइंट है वो अपने को एडिशन में आने वाला, एडिशन फैक्टर में आने वाला है। दूसरा है ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड। ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ग्राउंड, ये पॉइंट बहुत रेयर है और बहुत रेयर केस में पॉसिबल है, और फिलहाल अभी के कंडीशन में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये इनफिल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर सीवर में कब होगा, जब ग्राउंड वाटर टेबल अगर सीवर लाइन से ऊपर है, तो क्या होगा कि ग्राउंड में का जो वाटर है, ग्राउंड में का वाटर वो सीवर में जाएगा, अगर सीवर में कहीं से लीकेज है, और इसका जो एडिशन है वो कम क्वांटिटी में होगा और बहुत रेयर है। Then subtraction factor, water losses due to leakage, water losses due to leakage in the distribution system, during the distribution, water जब सप्लाई करते कंज्यूमर तक, अगर वहाँ पे कहीं लीकेज है या कहीं पाइप फूट गया, तो क्या होगा कि कैलकुलेशन में तो क्या रहेगा अपने लिए कि हमने इतना वाटर सप्लाई किया, इतना मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर सप्लाई किया, लेकिन एक्चुअल में लॉस होने की वजह से वो कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं, इसीलिए उतना सीवेज जनरेट होने वाला नहीं है। इसलिए ये अपने को ये पॉइंट जो है वाटर लॉसेस ड्यू टू लीकेज, ये अपने को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वाटर सप्लाई में से। देन water not entering the sewerage system, some water may not enter to the sewerage system, uh, that may be returned back to the environment. For example, what we can say that the water used in the boiler for steam generation, after generating steam, the water converted into steam, and steam goes to the environment. Then the other is the water sprinkler over the roads and the streets. Then the water consumed in the industrial product. Industrial product में जो water use हुआ होगा, वो water जो है वो वेस्ट वाटर में तो जाने नहीं वाला है, वो जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। देन द वाटर यूज्ड इन द एयर कूलिंग, जैसे कि कूलर है, तो समर सीजन में कूलर यूज करते हैं, कूलर रहेगा, तो उसमें का जो वाटर वो एनवायरनमेंट में चल जाता है, वो वेस्ट वाटर जनरेट नहीं करेगा। एसी में का जो वाटर है वो भी वेस्ट वाटर जनरेट नहीं करेगा। इसलिए ये जो अभी जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये एग्जांपल जो है
वो एग्जाम्पल किसी भी प्रकार का वेस्ट वाटर जनरेट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का सीवेज जनरेट नहीं करेंगे, इसीलिए ये वाटर सप्लाई में कंसिडर नहीं होगा। ये दो फैक्टर है, जैसे एडिशनल फैक्टर कौन से, ये दो पर जो बताया मैंने आपको, ये एडिशन दो फैक्टर है और ये सब्सट्रैक्शन दो फैक्टर। The net quantity of sewage produced is equal to water supply plus addition factor माइनस सब्सट्रैक्शन फैक्टर। क्या क्या है, वाटर थियोरेटिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ सीवेज जनरेटेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई, बट देयर आर सम addition factors and subtraction factor, that hence we have to consider these 2 points also. We have to add these two factors and we have to subtract these two factors. Okay. Generally the net quantity of sewage in India is considered as 70 to 80% of water supply. Okay, this 70 to 80% factor consider both addition factors as well as subtraction factor. Okay, that means net quantity of sewage is equal to 0.7 or 0.8 into the water supply. Then flow quantity estimation. The second flow is the drainage discharge, that is wet weather flow. The sewer and the drains of a separate sewerage system should be designed to carry maximum sewage discharge and maximum runoff. That we have to design separately. As in separate system, both the sewers are separate. But combined sewer carry both sewage as well as runoff. That's hence we have to design combined sewer for maximum sewage discharge as well as maximum runoff. लेकिन ड्राई वेदर के समय यानी समर सीजन में क्या होगा कि जो कंबाइन सीवर क्या कैरी करेंगे, सिर्फ एक ही टाइप का वेस्ट कैरी करेंगे, जैसे जो है वो सीवेज है, वो सीवेज ही कैरी करेंगे, रन ऑफ स्टॉर्म वाटर या रेनफॉल का जो वाटर रन ऑफ कैरी नहीं करेंगे। इसलिए ये डिजाइन करते समय इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जब समर सीजन आएगा या ड्राई वेदर आएगा उस समय जो सीवेज फ्लो होगा, सीवेज फ्लो होते समय वाटर की मिनिमम वेलोसिटी से क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये कंबाइंड सीवर डिजाइन करते समय ये पॉइंट कंसीडर करना चाहिए। देन peak drainage discharge in meter cube per second is given by CIA upon 360. In some books you may see the formula AIR upon 360. AIR means air upon 360. याद रखने के लिए इजी है AIR एयर अपॉन 360, इसलिए कुछ बुक्स में वैसा दिए हुए हैं, लेकिन बहुत से रेफरेंस बुक में अच्छे रेफरेंस बुक्स में जो पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है CIA upon 360. अभी CIA upon 360 है, 360 तो ऑब्वियसली कन्वर्जन फैक्टर रहेगा। देन C is the coefficient of runoff coefficient है। Then I is the critical rainfall intensity in mm per hour that we have to take in mm per hour. Then A is the catchment area. Catchment area should be in hectares, not in meter square, not in square foot, okay, not in kilometer square. That area we have to take in hectares only. Okay. So let's see what is coefficient of runoff. Coefficient of runoff indicates the imperviousness of the material. Okay, coefficient of runoff is the impervious factor which is equal to the ratio of runoff and the precipitation. Okay, what is coefficient of runoff? Ratio of runoff and precipitation. Larger C value represent larger imperviousness. अगर यानी कि अगर सी वैल्यू बड़ी है तो क्या वो मटेरियल क्या है, इम्परवियस ज्यादा है। इम्परवियस ज्यादा यानी कि वो वाटर को पास नहीं करेगा उसके थ्रू फ्लो होने के, इसीलिए इम्परवियस में ज्यादा है तो सी वैल्यू ज्यादा है। लेसर विल बी द इन्फिल्ट्रेशन जो है वो लेसर रहेंगे या पर्कुलेशन जो वो लेसर रहेंगे, हेंस ग्रेटर विल बी द रन ऑफ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सी की वैल्यू ज्यादा तो रन ऑफ भी ज्यादा। और जो पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज मिलेगा हमें वो मीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा। कब मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकंड में? जब रेनफॉल इंटेंसिटी हमने पर आवर में लिया या और कैचमेंट एरिया हमने हेक्टर्स में लिया, तब मिलेगा अपने को पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज ये मीटर क्यूब पर सेकंड में। और 360 जो ये कन्वर्जन फैक्टर है काय का, आवर का सेकंड में कन्वर्ट करने, हेक्टर्स का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो जो 360 आया ये कन्वर्जन फैक्टर है। Then runoff coefficient for various surfaces. See here the left side there are various surfaces 1 to
9 and C value is given. Uh, I have already told you that if the C value is higher, then the imperviousness of the uh, material is also high. If the C value is low, then the imperviousness of the material is low. That is, it is directly proportional. For let's see one or two example of both the values. The watertight proof surfaces and asphalt pavement in the good order, good condition order means the watertight roof surfaces and the asphalt pavement in good order have the values in the range 0.7 to 0.9. Okay, it has higher value 0.7 to 0.9. Okay, but for let's say some pervious material, pervious surface such as parks, lawns, and gardens. Okay, this soil is highly pervious and it requires more water. That's why here the value of C is 0.05 to 0.25. Then unpaved streets and vacant lands. Here also the percolation rate is very high. That's why C value is very low. Then let's see another example, waterborne macadam roads. जो गांव में विलेजेस में जो रोड रहते हैं वो हाईली परवियस रहते हैं, इसीलिए उनका जो सी वैल्यू है वो सी वैल्यू कम है. और सबसे कम दिया हुआ है 0.01 टू 0.02, ये है वुडन लैंड्स के लिए, यानी जैसे इट इज काइंड ऑफ फॉरेस्ट. ओके, so these all are the runoff coefficient for various surfaces. ये सी की वैल्यू जब डिजाइन करेंगे, सिविल डिजाइन करेंगे, स्टॉर्म डिस्चार्ज डिजाइन करेंगे, ड्रेनेज डिस्चार्ज डिजाइन करेंगे, तब तुम्हें ये काम में आएंगे. इसलिए ये सब वैल्यूज ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.